Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 15 July. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping healthy and at the same time you are taking good care also of yourself. Good care of yourself means you are listening to your parents, you're following all the safety precautions and you're following all the COVID protocols. Children, this virus is not over as yet. So we must follow all the safety precautions which are prescribed. We must follow all the COVID protocols. ठीक है? आने वाले टाइम में फिर से क्या हो सकता है? We do not know. Nobody knows in fact. So that is why we have to follow all the कोविड प्रोटोकॉल्स. जैसे हम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे वो हमें अभी आने वाले टाइम में भी फॉलो करते रहना है. ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ चिल्ड्रन. We have started with Unit 4 in English Grammar, which is naming words. So the chapter is still not over. So here I am before you with another video from the same chapter in continuation. By now I am sure you all are very well aware of naming words. अब तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. ठीक है, हमने इंग्लिश रीडर में भी लेसन में ग्रामर में पढ़ा नेमिंग वर्ड्स. The lesson which we have just completed in English course book, that is Little Red Hen. In that lesson also we discussed about naming words. उसमें हमने grammar exercise में naming words पढ़ा and this is the chapter naming words in grammar. तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है. तो I am sure by now you all are aware what are naming words. Naming words किसे कहते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. And naming words are the names of all the things, all the people, all the person, all the places where we go, all the things, birds, animals, fruits, vegetables, everything around us, everything has a name and they all are naming words. ठीक है? Naming words में name of persons जैसे जो special names होते हैं, जो नाम होते हैं, जैसे हमारे नाम है, आपके नाम है, जिस नाम से हम एड्रेस करते हैं, और also of people who help us, जो help us in the sense that people who work in our neighborhood. जैसे अभी हम EVS में पढ़ रहे हैं कि there are different type of people who work in our neighborhood. डॉक्टर है, नर्स है, ग्रीन ग्रोसर है, वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, मिल्कमैन है, कॉबलर है, वॉचमैन, पुलिसमैन, सोल्जर. ऑल दीज आर नेम्स ऑफ पर्सन. नेम्स ऑफ प्लेसेस, दैट इज प्लेसेस वेयर यू गो, जहाँ पे हम जाते हैं अक्सर. हॉस्पिटल है, स्कूल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है. ठीक है? बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पार्क, प्लेग्राउंड, शॉपिंग मॉल. और वी गो टू सम अदर सिटी, रिलेटिव्स के पास गए, आप विलेज जाते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास. दे आर ऑल्सो नेम्स ऑफ प्लेसेस. ठीक है? एंड एवरीथिंग अराउंड अस. एनिमल्स में डॉग, डियर, कैट, फॉक्स, जैकल, हेन, बर्ड, लायन, पीकॉक, पैरट, स्पैरो, जितने बर्ड्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है? ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. सो नेमिंग वर्ड्स I am sure is very clear to you now. We have started with the exercises. So turn to page number 17 children. We have done question number exercise number 1, 2, 3 and 4 of this lesson. Unit 4, that is naming word का हमने 1, 2, 3 and 4. We have done these 4 exercises. Now today we will start with exercise number 5. Okay? So turn to page number 17, that is 17. Okay? Turn to page number 17. Now here what you have to do is read the given words and put them in right place. Okay? Some words are given. Some words are given and 4 columns are there. Column for all the columns are a naming word only. Names of persons, names of places, names of animals and birds,
and names of things. Okay, so we have to arrange the word, we have to write the word, put the word in correct column. जो भी words दिए हुए हैं इन्हें हमें correct column में लिखना है. ठीक है, जैसे अगर if it is the name of a person तो हमें person वाले column में लिखना है. if it is the name of a place वो हमें place वाले column में लिखना है. if it is the name of animal or bird then वो हमें animal या bird वाले column में लिखना है. okay, and if it is the name of a thing then we have to write it in the correct column, things वाले column में करना है. this same exercise children we did in our course book also. course book में lesson number 3 में जो naming words की exercise 3 we have done the same thing. the only difference is कि in our course book we wrote the name on our own. उसमें हमें name of any four person, any 4 places, any 4 bird or animal and any 4 things with which you play. So that was our choice. Here the words are given, we have to place the word in correct column. Okay, so we will start with question number 5, page number 17 children. Okay, so question number 5 is read the READ, read the GIVEN, read the given words, read the given words and put them in RIGHT, right? PLACE, place. Now the words are garden, gardener. गार्डन सबको मालूम है, गार्डनर मतलब गार्डन जो बाग या बगीचा को हम गार्डन कहते हैं. गार्डनर इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन, हिंदी में जिसे हम माली कहते हैं. ठीक है, देन वैन, वैन जिससे आप स्कूल आना जाना करते हो, वैन होती है ना, मारुति वैन है. वैन इज अ टाइप ऑफ व्हीकल. बास्केट, बास्केट इज समथिंग इन विच वी कीप आवर थिंग्स. बास्केट में हम फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं टोकरी. मंकी, मंकी बंदर सबको मालूम है. मॉल, मॉल इज़ अ प्लेस वेयर वी गो फॉर आवर एंटरटेनमेंट. मॉल हम क्यों जाते हैं? मॉल हम नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि चलो आज संडे है कहीं घूमने चलते हैं, तो मॉल पास में है, मॉल जाते हैं. मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर शॉप में जाके शॉपिंग करते हैं. विंडो शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है. विंडो शॉपिंग मतलब बस शॉप में चीज़ें देखने में भी बहुत मज़ा आता है ना, कि वो इट सच अ प्रिटी ड्रेस, वो कितने स्मार्ट शूज़ हैं, कितने अच्छे से, ये कितना अच्छा टॉय है. तो हम बहुत बार सिर्फ जो चीज़ें लगी रहती हैं शोकेस में वो भी देख देख करके बड़ा मज़ा आता है, तो विंडो शॉपिंग भी करते हैं. कुछ शॉपिंग करने का मन होता है तो सामान खरीदते भी हैं. मर्जी होती है, मूवी भी देख लिया, कुछ खा लिया. ठीक है, तो मॉल इज़ अ प्लेस वेयर वी गो फॉर आवर एंटरटेनमेंट. फ़ोन, फ़ोन तो अभी सबको मालूम होगा. फ़ोन एक तो वो लैंडलाइन फ़ोन भी होते हैं जिसमें रिसीवर उठा के बात करनी होती है. देन आजकल तो एवरीबडी इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, इवन यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स. आप लोग जो अपनी क्लासेस करते हो सारी मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हो. देन स्नेल, स्नेल एक रेनी सीजन में दिखता होगा. छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे करके रहता है. स्नेल को हिंदी में कहते हैं घोंघा. ठीक है, स्नेल उसके आगे 2 ऐसे एंटीनास होते हैं, एंड जैसे कछुए की टॉर्टोइस की पीठ पे से हम्प होता है ना, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हम्प, ऐसे वो राउंड राउंड करके रहता है. उसको वो अपने शेल के अंदर भी अपनी वो गर्दन घुसा लेता है. ठीक है, स्नेल. ऑफिस, ऑफिस मालूम है सब जगह, जैसे ऑफिस, पापा ऑफिस जाते हैं, स्कूल में ऑफिस होता है, बहुत सारे और दूसरे ऑफिस है जहाँ पे काम होता है. बैंक, बैंक इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑफिस जहाँ पे लोग जाके काम करते हैं. स्टूडेंट, स्टूडेंट, यू ऑल आर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स जिसको हिंदी में विद्यार्थी कहते हैं, सो यू ऑल आर स्टूडेंट्स. देन जिराफ, जिराफ इज एन एनिमल. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, लंबी सी गर्दन होती है. देन चर्च, चर्च इज अ रिलीजियस प्लेस. इट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ क्रिश्चियंस. ठीक है, चर्च जो होता है जहाँ क्रिश्चियंस अपने प्रेयर के लिए जाते हैं. ग्रॉसर, ग्रॉसर इज अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स, जैसे जो रोज की हमारी यूज़ की चीज़ें होती हैं. ग्रीन ग्रॉसर जो वेजिटेबल सेल करता है उसको ग्रीन ग्रॉसर बोलते हैं. ठीक है, एंड ग्रॉसर जैसे ग्रॉसरी आइटम्स हम रोज का जो राशन लेते हैं, मिल्क है, ब्रेड है, एग्स है, बिस्किट्स है,
जो इस तरह की चीज़ें जो लोग सेल करते हैं, दे आर नोन एज ग्रोसर। ड्राई फ्रूट्स हैं और भी खाने की बहुत तरह की चीज़ें हैं। देन इरेजर, इरेजर यू ऑल नो, इरेजर जिससे आप इरेज करते हो, मिटाते हो। गूज, गूज इज फीमेल डक। अभी हमने नेमिंग वर्ड्स में बुक में एक्सरसाइज पढ़ी ना अपने लेसन नंबर 3 में, मेल एंड फीमेल वर्ड्स। सो डक, मेल डक इज नोन एज गैंडर एंड फीमेल डक इज नोन एज गूज। ठीक है, गैंडर एंड गूज। पोलिसमैन, पोलिसमैन भी हमने ईवीएस में पढ़ा था कि पोलिसमैन इज अ पर्सन हु वर्क्स इन द नेबरहुड। पोलिसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पोलिसमैन दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दे मेक श्योर कि कोई चोरी डकैती वगैरह ना हो, कोई गलत तरह का आदमी, कोई गलत तरह का पर्सन वहाँ पे ना घूम रहा हो जो लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो चिल्ड्रन, दीज आर द वर्ड्स। नाउ आई विल नॉट राइट द वर्ड्स बिकॉज अगर वर्ड्स लिख दूंगी तो बहुत जगह चली जाएगी। देन आई विल हैव वेरी लिटिल स्पेस टू राइट। ठीक है, और ओके, लेट मी राइट। देखूं अगर आ जाता है तो GARDE। इसको इफ आई राइट चिल्ड्रन विद ब्लू कलर, एक मिनट, आई विल राइट द वर्ड्स विथ ब्लू कलर सो दैट थोड़े से वो डिफरेंस समझ में आएंगे। द वर्ड्स आर GARDEN, garden, GARDENER, gardener, then VAN, van, BASKET, basket, MONEY, money, sorry, MONKEY, 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 then MALL, mall, PHONE, phone, then SNAIL, snail, OFFICE, office, STUDENT, student, GIRAFFE, giraffe, then CHURCH, church, GROCER, grocer, then ERASER, eraser, then GOOSE, goose, and then POLICEMAN, policeman. ठीक है, these are the words children. Now let us make the different columns. The different columns are, first column is PERSONS, persons. Second column is PLACES, places. Okay. Third column is ANIMALS, animals. Oblique BIRDS, birds. And fourth column is THINGS, things. Okay, fine. Now let us divide the words. The first word is garden. What is garden? Garden is a place where you go. बगीचा जिसको बोलते हैं। गार्डन में हम बहुत बार, जैसे बहुत पब्लिक गार्डन्स होते हैं जब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर, मेंटेन्ड वेरी नाइसली। ठीक है, तो हम जाते हैं गार्डन देखने के लिए। गार्डन इज अ प्लेस। सो आई एम श्योर चिल्ड्रन, हो सकता है कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मुगल गार्डन्स। जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, राष्ट्रपति भवन जो होता है, वहाँ का जो गार्डन होता है, दैट इज नोन एज, उसका नाम है मुगल गार्डन। अब ऑफ कोर्स इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड। अभी इसका नाम चेंज होकर आई थिंक राजेंद्र प्रसाद गार्डन कर दिया है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। सो गार्डन इज अ प्लेस। गार्डन को हम कहाँ लिखेंगे? गार्डन को हम लिखेंगे प्लेस वाले कॉलम में। ओके, GARDEN, garden. Okay. Second is gardener. Who is gardener? Gardener is a person who takes care of the garden. गार्डनर कौन है? गार्डनर एक पर्सन है जो कि गार्डन को लुक आफ्टर करता है, जो कि बगीचे की देखभाल करता है, माली जिसको कहते हैं। सो गार्डनर को हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? गार्डनर इज अ पर्सन, सो वी विल राइट इट इन दिस कॉलम, GARDENER, गार्डनर। ओके, देन थर्ड इज वैन। वैन किस में आएगा? वैन इज नीदर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में भी नहीं है। वैन कोई एनिमल या बर्ड भी नहीं है। वैन इज अ थिंग।
ऑल एवरीथिंग अराउंड अस, जितने ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इनफैक्ट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स बिकॉज दे ऑल्सो ब्रीथ, उनको भी सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, दे नीड फूड, दे नीड वाटर, एंड अगर उनको हम टाइम टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देते तो दे ऑल्सो डाई। सीड में से नया प्लांट निकलता है, बट इन प्लांट्स मेल फीमेल प्लांट एज सच अलग अलग नेम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बाकी सारी चीज़ें ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जान नहीं है। तो वैन क्या है? वैन इज अ थिंग। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट दिस इन दिस कॉलम। वैन को हम थिंग्स वाले कॉलम में लिखेंगे, वैन। ओके, देन बास्केट। बास्केट इज ऑल्सो अ थिंग। बास्केट भी क्या है? एक चीज है जिसको कि हम, जिसमें हम सामान रखते हैं। सो बास्केट को भी हम इस कॉलम में लिखेंगे, BASKET। बास्केट विल ऑल्सो कम अंडर थिंग्स कॉलम बिकॉज इट इज ऑल्सो अ थिंग। देन मंकी। मंकी तो सबको मालूम है, इट इज एन एनिमल, तो वी विल राइट मंकी इन दिस कॉलम, MONKEY, मंकी। देन मॉल। मॉल क्या है? मॉल इज अ प्लेस वेयर वी गो। मॉल एक प्लेस है जहां हम जाते हैं, तो मॉल किस कॉलम में आएगी? मॉल विल कम इन दिस कॉलम, MALL, मॉल। देन फोन। व्हाट इज फोन? फोन इज ऑल्सो अ थिंग। इट इज अ लाइफलेस थिंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग है विच वी यूज। तो फोन को भी हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट फोन इन दिस कॉलम, थिंग्स वाला कॉलम में। ओके, देन नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल को हम कहाँ लिखेंगे? वेयर डू वी राइट स्नेल? स्नेल इज एन एनिमल। ये जो स्नेल है, स्नेल क्या है? एनिमल है, तो वी विल राइट स्नेल इन दिस कॉलम, SNAIL। स्नेल बहुत छोटा सा होता है एंड हर जगह सच आपको नहीं मिलेगा। मे बी कई बार सी बीच है जहाँ थोड़ा सा ग्रास वगैरह होती है, वहाँ पे आपको दिखेगा, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। देन स्नेल हो गया ऑफिस। ऑफिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर वी गो, सो इसको हम प्लेस वाले कॉलम में लिखेंगे, OFFICE, ऑफिस। ठीक है। देन स्टूडेंट। हु इज स्टूडेंट? स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट इज अ पर्सन, जैसे टीचर्स है, प्रिंसिपल है, एक्सक्यूज मी, स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन। ठीक है, तो स्टूडेंट को हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट स्टूडेंट इन दिस कॉलम, STUDENT। वी विल राइट स्टूडेंट इन द कॉलम ऑफ पर्सन्स। ठीक है। देन जिराफ। वेयर डू वी राइट जिराफ? जिराफ हम कहाँ लिखेंगे? वी विल राइट जिराफ। जिराफ इज एन एनिमल, तो जिराफ को हम GIRAFFE, जिराफ। ओके। देन चर्च। चर्च, as I told you, church is a place of worship of Christians. Christians की place of worship है जहाँ Christians अपनी prayer के लिए जाते हैं। So church is a place. चर्च को हम कहाँ लिखेंगे? CHURCH। Children, as I told you कि चर्च जो है, they are all religious places, places of worship है, they are all common nouns। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर अगर यहाँ पे चर्च का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन होता है। Then grocer. Who is grocer? Grocer is a person where we go to buy things. Grocer है जिसके पास हम जाते हैं चीजें खरीदने के लिए। So grocer को हम कहाँ लिखेंगे? We will write grocer in this column, in the column of persons. ठीक है, grocer. Then eraser. What is eraser? Eraser is a thing which you use to erase something. कुछ मिटाने के लिए आप eraser यूज करते हो, तो eraser को हम लिखेंगे थिंग्स वाले कॉलम में, ERASER, eraser। ओके। देन गूज। गूज मैंने बताया, गूज इज फीमेल डक, गैंडर एंड गूज। मेल डक इज नोन एज गैंडर एंड फीमेल डक इज नोन एज गूज। अभी हमने इंग्लिश अपनी कोर्स बुक में पढ़ा ना, नेमिंग वर्ड्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स, दैट इज ऑल human beings, they have names and male names are different, female names are different. तो duck मतलब बतख है, तो मेल डक को हम गैंडर कहते हैं एंड फीमेल डक इज नोन एज गूज। ओके, सो गूज क्या है? गूज इज एन एनिमल। ये यहाँ पे ना गूज का, तो इसको हम GOOSE, गूज। देन पोलिसमैन। हु इज अ पोलिसमैन? Policeman is a person, POLICEMAN. Okay,
So there are 12 words. All these words are divided into 4 columns. Now children, complete this in your book. इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे, टेबल कंप्लीट करना है. ओके, you do this and then we will do the next exercise, that is exercise number 6. Okay, so I hope children you all have written these. ये अकॉर्डिंगली आपको कॉलम में करना है. एंड आई एम श्योर बाय नाउ अभी तक नेमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि इवन विदाउट सीइंग दीज, इसको देखे बगैर भी आप अपने आप भी लिख लोगे अब. आई एम श्योर, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स मैंने इतना डिटेल में बताया, इतनी बार रिपीट किया है कि अब तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नेमिंग वर्ड्स. तो आई एम श्योर कि इवन विदाउट सीइंग दिस, इसको आप देखे बगैर भी अपने आप कर सकते हो. बट एनीवे, मैं साइड में आ गई हूँ. अगर छूटा हो तो देन कंप्लीट इट एंड देन आफ्टर दिस वी विल do question number 6, that is choose the correct naming words and fill in the blanks. ठीक है, the words are given, we have to fill in the blanks with the correct word to complete the sentence. Okay children, so I hope by now everyone has done this. I am going to erase this. इंग्लिश ग्रामर भी इरेज हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, भी लिख देती हूँ. चलो, now question number 6, English GRAMMAR. ठीक है. Now 6 is, children, it is on same page number. 6 is choose the correct CHOOSE. Choose the CORRECT correct naming word and fill in the blanks. चूज का मतलब होता है, चूज करना मतलब चुनना. ठीक है, तो फॉर ईच सेंटेंस 2 वर्ड्स आर गिवन. ठीक है, हर एक सेंटेंस में 2 नेमिंग वर्ड्स आर गिवन. यू हैव टू चूज द करेक्ट नेमिंग वर्ड एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस. सो फर्स्ट वन इज अ dash GIVES gives you medicine, MEDICINE, and the words are doctor oblique PLUMBER plumber. ठीक है, डॉक्टर ऑब्लिक प्लम्बर. सेकेंड इज and dash has a long trunk, and the options are BEAR bear oblique elephant PHANT elephant. Third sentence is we see with our dash. The options are EARS ears oblique eyes, and the fourth one is dash is an indoor game, and the options are ludo 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 oblique HOCKEY hockey. ठीक है, now let us do a dash gives you medicine. Here this is the name of a person. The options are doctor and plumber. Children, the spelling is PLUMBER, but B is silent. ठीक है, हम plumber नहीं कहते हैं, we say plumber. B का जो sound है, the sound of B is silent. Plumber नहीं बोलते, it is plumber. The spelling is PLUMBER, but plumber. Okay, so remember this.
सो हु गिव्स यू मेडिसिन? वी ऑल नो कि हमें मेडिसिन कौन देता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? वी गो टू अ डॉक्टर. सो डॉक्टर ओनली गिव्स अस मेडिसिन, हमारा ट्रीटमेंट करके, हमारा चेकअप करके जो भी मेडिसिन देनी होती है. तो द करेक्ट वर्ड इज DOCTOR, अ डॉक्टर. अ डॉक्टर गिव्स यू मेडिसिन. ठीक है. एंड डैश हैज अ लॉन्ग ट्रंक. Now here it is very easy to identify bear, that is bhalu, and elephant, that is hathi. So elephant is the only animal which has a long trunk. जो elephant की trunk होती है that is its nose only. जो elephant की nose होती है that is its trunk. So elephant is the only animal which has a trunk. bear की तो trunk होती नहीं है. And secondly an is written here. We know that a and an are articles and an is used with words which start with a vowel sound. जो वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं. ओके. सो एंड इज यूज विथ वर्ड्स विच बिगिन विथ अ वॉवल साउंड. सो बी इज अ कॉन्सोनेंट. एलिफेंट. ठीक है. एंड अदरवाइज ऑल्सो वी ऑल नो दैट एलिफेंट इज द ओनली एनिमल विच हैज अ लॉन्ग ट्रंक. सो एंड ELEPHANT. An elephant has a long trunk. Then third is BC with our. जितने भी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं they are names of our different parts, so they are also naming words. जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो भी नेमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स के नाम है. तो वी सी विथ आवर किस पार्ट से हम देखते हैं? वी सी विथ आवर आइज. सबको मालूम है ईयर से तो हम सुनते हैं. वी हियर विथ आवर ईयर्स. EYES eyes. ठीक है. वी सी विथ आवर आइज. And fourth is dash is an indoor game. Children, there are some games which are played inside, which we can play inside, and there are some games which are played outside. Outside the house. Outside का मतलब है घर से बाहर, जिनको कि आप घर के अंदर नहीं खेल सकते हो. ठीक है. So the games which are played inside, which are played inside the home are indoor games. in मतलब अंदर, घर के अंदर खेलने वाले गेम्स. और the games which are played outside the house are outdoor games. ठीक है. तो इंडोर गेम्स जैसे ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग समर्स जब बहुत गर्मी होती है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, जाना भी नहीं चाहिए. और इफ़ इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत ठंड के दिन में, तो घर के अंदर हम बैठ के बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. जैसे कार्ड्स के बहुत सारे गेम्स होते हैं. लूडो है, चाइनीज चेकर्स है, कैरम है, चेस है. सो दीज आर ऑल इंडोर गेम्स. ठीक है. जिसको घर के अंदर बैठ के, हमारी मर्जी है तो जस्ट अ बोर्ड है उसको हम लेके बाहर चले गए, बाहर भी बैठ के खेल लिया. बट दीज आर ऑल नोन एज इंडोर गेम्स. घर के अंदर खेले जाते हैं. एंड आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट. ठीक है. जो आप पकड़म पकड़ाई वगैरह जितने भी गेम खेलते हो दीज आर ऑल आउटडोर गेम्स. जैसे टेबल लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, दीज आर ऑल आउटडोर गेम्स. सो इंडोर गेम्स लूडो एंड हॉकी. हॉकी तो घर के अंदर नहीं खेल सकते. सो which is the correct option? The correct option is ludo. आई एम श्योर लूडो सब आप लोग खेलते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ. आई एम श्योर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे लूडो खेलना बहुत पसंद करते हैं. सो लूडो इज एन इंडोर गेम. ठीक है. सिंस लूडो, हॉकी, दीज आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर गेम्स, सो दैट इज वाई दे आर रिटन विथ कैपिटल लेटर्स. एंड मोर ओवर ये फर्स्ट वर्ड है. ठीक है. सो चिल्ड्रन राइट दीज. मैं साइड में आ गई हूँ, साइड में हूँ. Complete the words and after that turn the page number 18. First you write this. इसको आप लिख लो पहले. Everyone has written. Now children, page number 18. Turn to page number 18. This is a fun time activity. ठीक है. इसमें मैं जस्ट बता रही हूँ कि व्हाट वी आर सपोज टू डू. आज इसको करेंगे नहीं हम. ठीक है. इसमें एक स्टोरी है. देयर इज अ स्टोरी. ठीक है. स्टोरी इज वेरी कॉमन स्टोरी. यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट स्टोरी. इन दैट स्टोरी यू हैव टू अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स आपको जो है इसमें जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं यू हैव टू अंडरलाइन दोज नेमिंग वर्ड्स एंड देन लर्न द स्टोरी.
ठीक है, स्टोरी को लर्न करो। कभी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होता है, लाइक एक बार हो चुका ऑलरेडी, मे बी नेक्स्ट टाइम फिर कभी हो, और ऐसे भी। सो यू कैन लर्न दिस स्टोरी, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो स्टोरी है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लर्न करना है। उसमें आप कुछ अपने सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हो, कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो। मेन स्टोरी का मॉरल नहीं चेंज होना चाहिए। Okay, so children, this we will do in the next class. Today I will stop here only. Complete this exercise in your book. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.